accounts coming in from the state of Uttar Pradesh as far as the legal conversion case is concerned, and there's a big disclosure by Changur Baba, the conversion Baba who's been arrested in this case. There is a 500 crore funding to Jalaluddin, who is the Changur Baba. According to the police sources, Jalaluddin has received huge amount of funding for the legal conversion. 200 crore funding detected so far by the police investigating agencies have detected funding of 200 crore rupees so far. 300 crore transaction done from Nepal. According to the sources, 300 crore transaction has been done from Nepal. 100 accounts open in Nepal and nearby areas, and this is what the sources have hinted, that so many accounts have been opened offshore in Nepal and nearby areas, which have been used for funding as well. So this is as far as the funding for this illegal conversion racket is concerned. Remember, the Enforcement Directorate had also asked for the details as far as this case is concerned. The UP police there is looking at the financial transaction of this Baba and many others who have been arrested in this case. 9 people have been named in the FIR. So far, 4 have been arrested, and that is the accused. His name is Changur Baba, who has been arrested by the UP police. In fact, earlier today, he was taken to his one of his residences in Uttar Pradesh after the police secured his custody. But now the focus is on the financial angle. What we are learning is that he got a funding of 500 crore rupees for the illegal conversion. And as per the police sources, this conversion was going on from the last 15 years. Many girls, including minors, were converted, and this spanned across multiple districts of Uttar Pradesh, and not just Uttar Pradesh, but now it is, as per the sources, several other states are also involved. So it remains to be seen how it pans out, but the investigation is currently underway, and the sources are saying that he got as many as 500 crore funding and also huge amount of money. 200 crore rupees detected so far. 300 crore rupees transaction was done from Nepal. There were as many as 100 accounts open in Nepal and nearby areas. So this, in fact, not just remains in India, but now there's also angle of the financial transactions done from Nepal as well. Terror finance angle has also come to the fore, but the focus for now remains on funding that this Baba got for this conversion that has been going on from the last 15 years. So there were also rates specified for different women, 15 to 16 lakh for a Brahmin women, for OBC 10 to 12 lakh, and for other castes 8 to 9 lakh. And this is in fact very shameful and very shocking case that has come to the fore. Let me go across to my colleague Raghavendra, who's been tracking this story very closely. Raghavendra, हमें बताइए कि क्योंकि आप पिछले 3 दिन से बता रहे हैं कि फाइनेंशियल एंगल है वो भी सामने आया है, ईडी ने डिटेल्स मांगी है, पर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि 500 करोड़ रुपए फंडिंग दिए गए थे इस इलीगल कन्वर्जन के लिए। हमें और बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, दो दिन पहले यहाँ की जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एनआईए कोर्ट में छांगुर बाबा से पूछताछ के लिए एप्लीकेशन दिया था और रिमांड मिली। रिमांड के बाद कल दिन भर लखनऊ में पहले पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई थी नीतू उर्फ नसरीन से और छांगुर बाबा से, तो बहुत बड़े सुराग मिले, और जब सुराग मिला तो आज जो यूपी एटीएस है वो बिना किसी को सूचना दिए गुपचुप तरीके से छांगुर बाबा को लेकर के सीधे उतरौला आती है बलरामपुर उसके घर पर, और वहां पर लगभग आधे घंटे से ज्यादा पूछताछ होती है, सारी जानकारी ली जाती है, और पूछताछ के बीच में एटीएस के कमांडो भी साथ में थे, और खुद उतरौला की जो पुलिस थी, सीओ राघवेंद्र सिंह, जो वहां पर पूरी सुरक्षा दे रहे थे लोकल पुलिस के नाते, उनकी मौजूदगी में पूछताछ हुई, और फिर वहां से यूपी एटीएस की जो टीम है वह सुरक्षा के बीच में छांगुर बाबा को लेकर के लखनऊ वापिस हो जाती है। कुछ एटीएस के लोग थे जो कोतवाली उतरौला में अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके वो भी चले गए। तो ये बहुत बड़ा जो अपडेट है वो यहां से निकल
निकल के आया कि जो एटीएस है, जो जांच एजेंसी है, वह काम अपना कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। 7 दिन का रिमांड है, 2 दिन अभी बीत चुके हैं, 5 दिन और है, और आने वाले समय में ईडी भी रिमांड पे लेके पूछताछ करेगी। हालांकि जो पूरा जो नेक्सस है वो 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है कि किस तरह से अरब कंट्री से, खाड़ी देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते पैसा आता था, हवाला से पैसा आता था, और छांगुर बाबा के जो अनुयायी थे वह भी कहीं न कहीं उसको पैसा डोनेट करते थे। उतरौला में HDFC बैंक में अकाउंट्स है, SBI में अकाउंट है, और महाराष्ट्र में कई बैंकों में अकाउंट्स है। तो पूरे इस अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शन को खंगाला जा रहा है। ईडी भी कागजों पे काम कर रही है, ईडी लगातार अकाउंट्स पे काम कर रही है। जो जरूरत पड़ेगी तो वह भी रिमांड में लेकर छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी। लेकिन सारे नेटवर्क पे बात हो रही है। FIR में 9 लोगों का नाम है, 4 लोग गिरफ्त में है पुलिस के, 5 लोग फरार है, उन पर बात हो रही है, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। एक अज्ञात FIR है जिस पर लगातार पुलिस अपना काम कर रही है उसको पकड़ने के लिए। तो हर एंगल पे काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान से जो खेलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही यह धर्मांतरण का ही खेल नहीं है, देश विरोधी तत्व यहाँ पर एक्टिव हैं, देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो ऐसे में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। NIA भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि देश के विरुद्ध काम करने का मामला है। तो बहुत सारे एंगल्स पे बात हो रही है। छांगुर बाबा ने कई प्रॉपर्टी उतरौला के मार्केट में बनाई है, जैसे आलीशान बुटीक सेंटर बनाया है वहाँ पर, जहाँ पर महिलाएं आती हैं साज सज्जा के लिए। साथ ही वहाँ पर एक मिनी कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसमें कपड़े आदि वहाँ पर सामान बेचे जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसका अपना जहाँ पुराना घर था रेहरा माफी में, वहाँ भी उसका घर खड़हार हो के खुद जमींदोज हो गया है, लेकिन वह ज़मीन है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं। सारा जो पैसे का खेल है, जो ट्रांजैक्शन है, वो सारी चीज़ें निकल कर के आ जाएंगी, और आने वाले समय में जो जांच एजेंसियां हैं वो सारी चीज़ें सामने ला देंगी। Absolutely, more investigating agencies could be involved in future. ED and NIA could also investigate this case. Thank you so much, Raghavendra, for all the details. We'll keep coming back to you for more.